Hello and welcome to Military Mantra. In this interview, we have today Captain Yashika Hatwal Tyagi, who has served Indian Army, and she was also from the initial batches of women who got inducted into Indian Army. So in this interview, we'll try to understand her journey of joining Indian Army, life within Indian Army, and various life lessons that she has learned over service. So thank you for coming on this interview, ma'am, and welcome. My pleasure. Jai Hind. Ma'am, my first question to you would be, when did you decide to join the Indian Army and what motivated you back then to join the Forge? Akash, this is a very interesting question. कॉलेज में थी तब तक फौज में लड़कियों के आने के लिए रास्ते खुले ही नहीं. So I completed first year of college, I completed second year of college, and there was no inkling of lady officers being inducted into Indian Army. लेकिन मेरा तो जुनून था कि मुझे वर्दी पहननी है. That was a thing. जैसे आपके दिमाग में फिट हो रखा है ना, आपने वर्दी पहननी है, ऐसे ही मेरे दिमाग में फिट था कि मुझे वर्दी पहननी है. My father was an army officer. We lost him while service of the nation. And उनकी वर्दी जो घर से निकली थी, माने उनका जब शरीर घर आया था तो वर्दी पहनी हुई थी उन्होंने. So I always had this thought that I will wear a uniform. I was only 7 years old when we lost our father. तो यूनिफॉर्म पहननी है ये बहुत क्लियर था. तो जो यूनिफॉर्म मिलती गई उतनी छोटी उम्र से वो पहनते गए. पहले स्काउट्स गाइड्स, फिर एनसीसी तो जूनियर विंग में आरडी किया, सीनियर विंग में आरडी कैंप किया. आई वेंट टू कनाडा एंड द इंडो कनाडा यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम. And when I came back from Canada, that was the time I actually started giving it a serious thought कि वर्दी कैसे पहननी है हमेशा. अब तो कॉलेज खत्म हो रहा है. Now what? Then it was very clear in my head that it's only IPS for me. And why? Because of Kiran Bedi. Okay. तो मुझे किरण बेदी की जैसे वर्दी पहननी थी, उनके जैसे डंडा मैन बनना था. She was my role model. I would keep her photograph on my study table and study. And very seriously started studying for UPSC exam. Okay. But by the time I completed third year, that was the time that army opened its gates for women, and that first batch of lady officers was inducted. उनकी passing out 93 में हुई और 94 में मेरी passing out parade हो गई. Nice. So it was that was the journey. Vardi was the motivation. Father was the motivation. Got it, ma'am. Army happened at the right time, at the right age. So everything just fell into place. Nice, ma'am. Ma'am, if you could also tell us, back then, how was the process like and your whole experience of service selection board, and also what tips you would like to give to the aspirants who, appear for SSB? Okay. Akash, जब भी lady officers को induct करना शुरू, it's okay ना if I go bilingual, Hindi Yes, English that's mix, fine. it's okay? Yeah. Okay. तो जब लेडी ऑफिसर्स को इंडक्ट करना शुरू किया था तो उस दौर में we were called women service. It was not even short service commissioned. We were called women service. And there was no CDS. Lady defense aspirants, women aspirants would send their mark sheets to army headquarters. क्योंकि उस वक्त तक आर्मी ने बड़े लिमिटेड फील्ड्स ओपन किए थे फॉर गर्ल्स टू एंटर. देयर वाज ASC, ऑर्डिनेंस, जैग ब्रांच, एजुकेशन, EME, इंजीनियर, सिग्नल्स, और हर एक के लिए एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिसाइडेड थी. फॉर सिग्नल यू शुड हैव हैड अ डिग्री इन टेलीकम्युनिकेशन. फॉर engineers you should be an engineer graduate. मैं ऑर्डिनेंस में थी और उसमें चाहिए थी ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स. So since I had economics in my BA pass course, I fell into that educational qualification criteria and sent the application to army headquarters. फिर army headquarters अलग-अलग vacancies के हिसाब से merit list बना और उस merit list के हिसाब से SSB के लिए call आया. So it was a very different system when they began. Actually, it began with an experiment, totally experiment, when they started taking lady officers. And luckily I had done very well in my graduation. I had topped in my college. तो मेरा merit में number लग गया. SSB की call आ गई. अब वो first hurdle
totally, jumped. और बाद में पता चला that there were almost 25,000 applications for 25 vacancies. There was only vacancy for 25 women officers. And it was a huge competition. वो जुनूनी लड़कियां थी उस समय, पता था कि खाली 5 साल है, लेकिन जाना है फौज में, पता है परमानेंट नहीं है, सबसे जिंदगी के बढ़िया साल यहां निकल जाएंगे, लेकिन वर्दी पहननी। तो इस जुनून के साथ पहुंच गए एसएसबी। अब एसएसबी जब पहुंचे तो उस समय इतनी बुक्स भी नहीं आती थी, जैसे जैसे आज लड़कियों के सामने दूसरे चैलेंजेस हैं, उस समय चैलेंजेस ये थे कि फौज में क्यों जा रही हो, व्हाई। लकीली मेरे साथ ये चैलेंज नहीं आया बिकॉज ऑफ माय फैमिली बैकग्राउंड, बट देयर वर गर्ल्स हु हैड दिस। सो एसएसबी की बुक्स इतनी रेडिली अवेलेबल नहीं थी, आज के जैसा सोशल मीडिया तो था ही नहीं। इट वाज अ डोमेन व्हिच वाज वेरी रिस्ट्रिक्टेड। जान पहचान में कोई लोग नहीं थे जो एसएसबी के बारे में जानकारी दे सकते थे। एक पतली सी बुक मिली कहीं से एसएसबी के बारे में, तो पता चला कि कुछ वर्ड्स पे सेंटेंसेस बनाने होते हैं, स्टोरी लिखनी होती है, एक ग्रुप डिस्कशन होगा और फिजिकल स्टेमिना चेक होगा, बस इतना पता। तो यू कैन इमेजिन कि कितनी स्केची इंफॉर्मेशन थी, एकदम स्केची। पहुंच गए एसएसबी, तो जैसे ही पहुंचे, जो बस हमको रेलवे स्टेशन से लेकर आई थी, उसमें हमारा सामान भी नहीं उतरने दिया, अभी सामान बस में ही रखा था। एंड वी वर इमीडिएटली टेकन फॉर द डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन चेक हुए और पहला टेस्ट दिया उन्होंने। द फर्स्ट टेस्ट वाज गिवन एप्टीट्यूड। उस वक्त सिर्फ ये था कि बस पहले दिन वापस न जाए कम से कम एसएसबी तो पूरा करने को मिल जाए, यू नो। क्योंकि एकदम इट वाज लीप ऑफ फेथ, जंपिंग इनटू द अबिस। नहीं पता था क्या होना है, बट लकीली दैट फर्स्ट थिंग क्लियर्ड। उसके बाद अगले दिन और टेस्ट्स हुए, और मतलब उसके आगे तो फिर एक के बाद एक टेस्ट होते ही गए, क्योंकि वो पहला दिन क्लियर हो गया था। फिजिकल्स जब चेक किया तो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट इन दैट बिकॉज आई वाज अ वेरी एविड स्पोर्ट्स प्लेयर, आई वाज एन एथलीट एंड आई वाज इनटू एनसीसी बिग टाइम। तो मुझे फिजिकल्स का, ऑब्स्टिकल्स का कोई मतलब, आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट इन दैट एंड आई डिड वेरी वेल, माय टाइमिंग वाज वेरी गुड। जब उन्होंने वो जीटीओ टास्क्स दिए, दैट वाज आई थिंक आकाश, उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज मैंने जिंदगी में नहीं देखी थी। फॉर मी इट वाज लाइक व्हाट इज दिस। ये जो हमको सिचुएशंस मिल रही हैं, ये जो हमको एकदम एक वो फट्टा बल्ली रस्सी, अब ये इस पे निकल के दिखाओ और ग्रुप के साथ इसको सॉल्यूशन निकालो, that I find most interesting. And that was by grace of God. I was called by almost हमारा बैच 35 गर्ल्स का था, उसमें से I think 22 called me for help during GTO task. Okay. So that I think went in my favor, that I am a team player. तो ऐसे करके एसएसबी बहुत बढ़िया हुआ, इंटरव्यू बहुत बढ़िया हुआ। Interview went on for good 45 minutes or so, and I was asked a lot of questions about my background, about my NCC, about various questions, lot of GK questions they asked me, my take on various international issues, because I had come back from Canada from doing that youth exchange program. So I had gone bindas, bina dare, or God was kind. I cleared my SSB, I cleared my medical, and I cleared in the first attempt. Got it. So that was my experience of. लेकिन टिप्स की जब आप बात कर रहे हैं कि मैं जो डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या टिप्स देना चाहूंगी, 2-3 चीजें वेरी ब्रॉडली। सबसे पहले तो you must, capital bold italics, you must practice speaking. Right? Your expression, your communication has to be very non-threatening.
and very clear. Non-threatening से मतलब जब आप अपने ग्रुप में भी interact कर रहे हैं, you should not come out as very bossy or something, because तब आप gel नहीं कर पाएंगे. And people are looking for the teamwork, right? Then speaking with lot of clarity, read lot of newspapers, read editorials. And when you are reading, not only just read as in read, you must put your mind to it as to pros and cons के बीच में आपका क्या opinion है. Because when you are standing there in group discussion, who knows what situation is given to you? When you are being interviewed, who knows what situation is given to you, what is asked to you about national or international affairs, and people do not want to know कि दुनिया में क्या घट रहा है, right? People want to know आपका क्या opinion है. So you must read a lot and put your mind as to what is your opinion. और सबसे important है आपके mind से आपके मुंह के बीच की जो दूरी है उसमें thoughts रुकने नहीं चाहिए. Your thoughts should be very clearly articulated. तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, yes, you will be spoken to in English primarily, but it is not a Shashi Tharoor type of English. आप बेसिक सिंपल इंग्लिश में आप अपने थॉट्स कन्वे करिए. शीशे के सामने खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस करिए. और एक चीज मैं हाथ जोड़ के करबद्ध होके सभी बॉयज और गर्ल्स को ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जब आप कोई नया वर्ड देखते हैं, पढ़ते हुए कोई नई चीज आपके सामने आती है, तो प्लीज डू नॉट ओपन गूगल डिक्शनरी. Go to the proper physical book of dictionary, open, read through, leaf through, and then come at the meaning of that word. उसमें क्या है, आप चलते चलते 2-3 और नए वर्ड्स देखेंगे. You will actually be finding meaning of a word. क्योंकि जब आप डिक्शनरी पढ़ते हैं उसमें मीनिंग है, उसमें सेंटेंसेस हैं, उसमें एडजेक्टिव है, वर्ब है, वो ये चीज कितनी तरीके से यूज होती है. Gives you very good idea. So if you are not so good in physicals or you have not been on the field for a long time, practice running, practice your stamina, right? क्योंकि स्टेमिना के ऊपर ही सारे ऑब्स्टिकल्स हैं. वो कोई आपसे पहले ही दिन बहुत भयानक ऑब्स्टिकल नहीं कराएंगे, लेकिन वो आपका फिजिकल फिटनेस चेक करेंगे, राइट? कम से कम टाइम में आप कितने करते हैं, आपका आर्टिकुलेशन चेक करते हैं, आपका टीम चेक करते हैं कि आप कितना टीम वर्क कर सकते हैं, और आप कितना स्पॉन्टेनियस सोचते हैं. तो यही सब चीजें हैं. प्रैक्टिस करके जाइए और खुले दिमाग से जाइए. Got it. मैम, when we go to SSB हमें सुनने को मिलता है OLQs के बारे में, कुछ 15 OLQs है, officer like qualities. So what is your perception about them? Because आप जब SSB गई थी, आपको तो नहीं पता था OLQs के बारे में, but now that you have come out, now that you have come out, what is your perception कि लोग बोलते हैं officer like qualities ये हैं, should you develop it and go, या फिर academy में grow होती है, या फिर in the service? What is your opinion about it? आपने तो एकदम बढ़िया बात बोली है आकाश. OLQ क्या होता है, ऑफिसर लाइक क्वालिटी क्या होता है, ये तो बहुत बाद में पता चला कि देयर इज अ प्रॉपर theory of officer like qualities. इसीलिए कहते हैं कि SSB is your test of personality, because officer like quality is not objective, it is all subjective. It is all what is inside you, right? बहुत सिंपली इसको पुट करें तो संस्कृत में कहते हैं मानसा वाचा कर्मणा. This is OLQ. आपके मन में, आपके थॉट्स में कितनी स्ट्रेंथ है, what is your determination, what is your resilience, right? ये आपके अंदर है. कर्मणा, कि आप उसको कितनी शिद्दत से आगे लेके जा रहे हैं. What is your discipline of thought and body? What is your teamwork? What is your organizing ability? कि आप कोई चीज को किस तरीके से, अब आपका GTO टास्क है,
और आपको अपनी टीम के साथ आपको एक ग्रुप टास्क मिला है, आप उसमें सॉल्यूशन दे रहे हैं, कुछ ऑर्गेनाइज ही कर रहे हैं ना। This is what? This is OLQ. How you can think of a solution and execute it on ground. बड़ा सा वर्ड है, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, OLQ है। सरल भाषा में बोले इफेक्टिव इंटेलिजेंस क्या है? कि आप इंटेलिजेंटली उस सॉल्यूशन को जमीन पर उतार सकते हैं कि नहीं, है ना। अगर जो डिफेंस एस्पिरेंट सुन रहे हैं, बड़े बड़े नामों से डरने की जरूरत नहीं है, राइट। अगर आप एक बहुत छोटी सी चीज देखें कि आपके कॉलेज में फेस्ट है, राइट, और आपको एक टास्क मिला है। अच्छा, इसके भी आगे जाते हैं, आपको कोई टास्क नहीं मिला है, आपने इनिशिएटिव लिया है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्शन। इनिशिएटिव happens in the mind first and then it comes in a physical form. What is this? This is OLQ, that you take initiative, you effectively think कि मैंने जो ये काम लिया है इसको मैं कैसे करूंगा, right? और अगर सरल करके देखें, आपके आसपास बहुत सारी सॉल्यूशन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आप देख रहे हैं कि कोई किसी सिचुएशन में है, कोई आदमी किसी सिचुएशन में है, पीपल आर there, मेरा क्या सॉल्यूशन होगा? So in your mind you are effectively thinking, you are outside that problem but you are thinking of a solution effectively, right? कोरोना के टाइम पर आपने देखा, आप ही के जैसे यूथ थे जिन्होंने रातों रात कितने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स बना दिए, फेसबुक पे ग्रुप्स बना दिए, यू वर एक्सपैंडिंग द इंफॉर्मेशन कि कहां ऑक्सीजन सिलेंडर है, किस हॉस्पिटल में बेड्स हैं, कहां से एम्बुलेंस मिल सकती है, जो साथ में अटेंडेंट्स हैं उनके खाने पीने का कैसे प्रबंध हो सकता है। आप ही के जैसे यूथ थे ना। व्हाट इज दिस? ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। कोई बहुत बड़े बड़े वर्ड्स ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये सब आप लोगों ने किया है। दिस इज OLQ। टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, इनिशिएटिव, पावर ऑफ एक्सप्रेशन। अभी मैंने आपको बोला कि प्रैक्टिस करिए पावर ऑफ एक्सप्रेशन। फौज में एक लीडर वो है जो अपने वर्ड से, अपने पावर ऑफ स्पीच से अपने टीम को इतना मोटिवेट कर देता है, चाहे वो जंग का मैदान हो, चाहे वो बास्केटबॉल का कंपटीशन हो, चाहे वो हॉकी का ग्राउंड हो, चाहे वो एक ऑफिस की टीम बिल्डिंग एक्टिविटी हो, वो अपने टीम को अपने वर्ड से इंस्पायर कर देता है। दैट इज एन ऑफिसर लाइक क्वालिटी, when you give realistic solutions with effective intelligence and organize your team in such a way that they are able to perform. मानसा, वाचा, कर्मणा, इन सब चीजों में ही सिमटा हुआ है OLQ. And let me tell you, it is not about who has it. It is not about that कि किसके अंदर by birth OLQ है. You are judged on how driven you are to achieve that OLQ, because it is all doable, it is all achievable. जो मैंने आपको अभी ये 4-5 चीजें बोली, ये तो हर कोई प्रैक्टिस से अचीव कर सकता है ना। हाँ। और जब आप SSB के लिए जा रहे हैं तो you are supposed to come across as a balanced personality, as a balanced personality. ये नहीं है कि जब आपका ग्रुप डिस्कशन हुआ तो आप बोल रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, मेरा ही थॉट सब लोग सुने, एंड देन यू थिंक देखो मैंने कितनी लीडरशिप क्वालिटी दिखाई, मैं ही बोल रहा था। नो, इट्स ऑल गॉन अगेंस्ट यू because you have not allowed your team to perform as a team. Correct. Your power of expression was bullshit. Sorry for my using this word. कि अगर आप 30 मिनट बोलते जाएंगे, इसका मतलब आपके अंदर वो शब्द ही नहीं थे कि आपने गागर में सागर संभाला। Right? When you agree with someone, say I agree. When you disagree with someone, you should have
the power of conviction to say, I disagree with you, my friend, but these are the reasons. This shows your mind, how balanced it is. And in a nutshell, all of this is OLQ. And this is my take on officer life qualities. Got it, ma'am. Ma'am, if you could, also talk about your life in the academy. You would have gone to Officer Training Academy. So how was life back then in the academy? And, any memorable incident that you would like to share with the aspirants? पहले दिन से, पहले मिनट से ही मेमोरीज बननी शुरू हो गई थी. जब ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी पहुंचने का कागज आया, एसएसबी क्लियर हो गया, आई थिंक वो दिन मेरी जिंदगी का हाईएस्ट पॉइंट है, बिकॉज आई कैनॉट पुट दैट जॉय इनटू वर्ड्स. एसएसबी देने और ये कागज आने के बीच में आई लॉस्ट ऑलमोस्ट 6 kgs weight. I was so waiting for that result. मेरा होगा या नहीं होगा, मेरा होगा या नहीं होगा, क्योंकि उस समय मैंने अपने लिए कोई प्लान भी नहीं रखा था. पहले तो आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, लेकिन फिर मैंने जब एसएसबी दिया तो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट. आई रियली वांटेड टू जॉइन बिकॉज wearing olive greens, wearing that uniform of my father, that is what I wanted to do. तो जब वो कागज आया तो मतलब मैंने पोस्टमैन को के तो हाथ पकड़ के ऐसे गोल 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 घूम गई. आई वाज सो हैप्पी. पहले वो खाकी एनवेलप में चिट्ठियां आती थी घर में, आज की तरह ईमेल नहीं आता है, पहले सरकारी सील लगकर चिट्ठी आती थी. बहुत खुशी हुई. फिर उस ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन के साथ में एक लिस्ट आई कि आपको अपने साथ साथ क्या लेकर आना है. तो उन्होंने बोला व्हाइट शर्ट लाइएगा, ब्लैक ट्राउजर्स लाइएगा, ब्रोक शूज लाइएगा, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द मफ्ती, कि जब तक आपकी यूनिफॉर्म नहीं सिली तब तक आपने यही पहनना है. स्विमिंग के लिए आपको एक रोब लेकर आना है. रोब क्या होता है स्विमिंग में पहनने वाला, पता ही नहीं था. तो वो सिलेगा कौन, क्योंकि हमारे पास कोई इतने पैसे तो थे नहीं कि हम जाते और किसी बड़ी दुकान से खरीद के लाते. हमें तो सिलवाना ही था टेलर से. टेलर ने बोला मुझे ये सिलना ही नहीं आता. तो ये छोटी छोटी चीजें थी, बड़े फनी इंसिडेंट्स होते गए. फाइनली सारा सामान बन गया, दिन आ गया जाने का. माय एंटायर फैमिली वाज वेरी इमोशनल. इट वाज अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर द एंटायर फैमिली. और रिजर्वेशन कराया. बरेली में हम थे उस समय, और बरेली से ट्रेन पकड़ी चेन्नई की, और उस समय मद्रास बोलते थे. पहुंच गए. वो जो जर्नी थी विच स्पैन्ड फॉर गुड डे एंड नाइट, और अगले दिन जाके पहुंचना, लॉट ऑफ एंटिसिपेशन. रेलवे स्टेशन पे बस लगी हुई थी क्योंकि हमने अपने आने की पहले ही डेट्स टाइम बता दिया था. और मैं बड़े फख्र से बाहर निकली, अपना सूटकेस लेकर. बस देखी. I went to that driver who was standing outside and I told him very proudly कि जैसे मैं दुनिया में एक नई अनोखी हूँ. I felt like that, walking 2 inches above the ground. मैं तो ज्वाइन करने आई हूँ अकेडमी. And he said, हाँ आप बैठिए. और फिर बस चल पड़ी. सारे रास्ते तो लगा that चक दे का गाना है ना, बादल पे पाँव है, बस वही वाला दिमाग था कि पहुंच गए अकेडमी. लेकिन अकेडमी के गेट पे पहुंच के द स्टमक जस्ट ड्रॉप. और मुझे लगा कि ये कुछ गलत तो नहीं हो गया, ये डिसीजन गलत तो नहीं हो गया, मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी. बस वो गेट्स खुले, बस अंदर गई, एंड द लाइफ चेंज्ड. हमारे टाइम पे वी डिड नॉट हैव विमेन कैडेट्स एज आवर सीनियर्स, वी हैड मेल कैडेट्स एज आवर सीनियर्स, क्योंकि हमारे एकेडमी में पहुंचने के 10 दिन पहले पीओपी हो चुकी थी. तो जो हमसे पहले का जो बैच था उसकी पासिंग आउट हो गई थी. एंड वी वर द 25 गर्ल्स हु वर देयर. पहले दिन से ही रगड़ा शुरू. पहले दिन से, फ्रॉम द वर्ड गो. आई रीच्ड अकेडमी एंड माय सीनियर्स टोल्ड मी बेंड. मैंने तो ऐसे झुक के एंड आई टच्ड माय टोज बिकॉज़ दैट इज व्हाट आई न्यू ऑफ बेंड. मुझे पता नहीं था बेंड का मतलब बेंड स्ट्रेचेस लगाना है.
चेन्नई की गरम सड़क पे टार के ऊपर वो पहले दिन से ही हाथ जलने शुरू हुए, एंड दे स्टार्टेड मेकिंग मी रोल। ये आता ही नहीं था रोलिंग करना इतना। और देन आई डिसाइडेड कि ये ट्रेनिंग जो है ये आग का दरिया है, और इसमें तो डूब के ही जाना है। एंड विद दैट वाज माय फर्स्ट डे इन एकेडमी, द फर्स्ट डे इन परेड ग्राउंड। I was an NCC cadet. I was doing very well. दाएं मोड़, बाएं मोड़. Academy adjutant came on the horse. He looked at the entire group. टेढ़े मेढ़े सब खड़े हैं. And when he came and उस्ताद ने बोला दाएं मोड़, मैंने तो ऐसा चटकी वाला दाएं मोड़ किया, like my life depended on it. I gave the best दाएं मोड़, दबा के एक थम मारा. And adjutant, then the adjutant was Colonel Lalit Rai. Okay. The famous Colonel Lalit Rai, who was the Kargil hero later on, who was the commanding officer of Manoj Pandey. Yeah. He looked at me and he said, he told Ustad, साहब ये वाला कैडेट को कॉन्टिजेंट कमांडर के लिए तैयार करिए. And from the first day, I was being trained for the contingent commander. I passed out with a medal in academy. That was huge. Academy was huge. Life changed. Life changed. I changed after that. Nice. तो मैं आपको कितनी कहानियां सुनाऊं, बहुत हैं. Nice. कोई और दिन. Ma'am, you were also an ordnance officer. So, ma'am, if you could tell us, to the audience, how does one day as an ordnance officer look like in terms of, role, responsibility, and routine? How does it look like? We must actually, this is a very good question, Akash. क्योंकि लोगों के दिमाग में, बच्चों के दिमाग में ये सवाल बहुत बार होता है कि फौजी करते क्या है. जब लड़ाई नहीं होती तो फौजी करते क्या है. तो मैं आपको सबसे पहले तो एक सेंटेंस क्लियर करती हूँ. Just said that more you sweat in peace, less you bleed in war. तो फौज जो है वो हमेशा अपने आप को इतना तैयार रखती है कि एक मिनट के नोटिस पे अगर हुक्म आए कि हमें निकलना है, तो in a matter of couple of hours the entire regiment is ready to move with all equipments. तो ये कोई कंफ्यूजन की चीज नहीं है कि लास्ट मिनट में हमें पता ही नहीं है कि किसका क्या रोल है. हर एक का रोल डिफाइंड होता है, हर एक का रोल वेल प्रैक्टिस्ड होता है. एंड वी ट्रेन एंड वी ट्रेन एंड वी रीट्रेन एंड वी रीट्रेन till the time everything becomes a muscle memory. So फौज अपने पीस टाइम में बहुत बहुत ट्रेनिंग करती है और बहुत प्रैक्टिस करती है. आपने देखा कि कभी फ्लड्स आ जाते हैं, कभी अर्थक्वेक आ जाता है, कभी कोई ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कोई बच्चा बोरवेल में गिर जाता है. बुलाते किसको है? फौज को. क्यों बुलाते हैं फौज को? फौज जब हमारी ट्रेनिंग होती है तो हमें कभी ये ट्रेनिंग नहीं दी जाती है कि बच्चा गिर गया है, अब इसको कैसे निकालेंगे. ये नहीं सिखाया जाता है एकेडमी में. नहीं. फ्लड आ जाएंगे तो आपने कुछ दिन पीछे, 4-5 दिन पहले की बात है शायद, नैनीताल में जब इतना क्लाउड बर्स्ट हुआ, तो आपने एक क्लिपिंग देखा होगा, बहुत घूम रहा था कि फौजी जवान एक ह्यूमन चेन बना के खड़े हो गए थे उस पानी के सामने. उस मतलब जो इतना भयानक पानी का जो फ्लो आ रहा था, दे स्टूड इन फ्रंट ऑफ दैट मेकिंग अ ह्यूमन चेन एंड दे सेव्ड द पीपल who were drowning in it. तो ये सब ट्रेनिंग हमको एकेडमी में नहीं कराते हैं. लेकिन हमको एक चीज की ट्रेनिंग कराई जाती है कि हमने कैसे अपना फिजिकली फिटनेस मजबूत रखना है, कैसे हमने इनिशिएटिव लेना है, कैसे हमने आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करनी है, जिससे कि हमको किसी भी ऐसी जगह डाल दो, किसी भी सिचुएशन में फेंक दो, we will always perform, we will always produce results. Because we believe in training. तो ये है एक चीज जो मैं बोलना चाहती थी कि आर्मी does lot of training and everyone is in a complete state of alertness at all times.
अब मैं एक ऑर्डिनेंस ऑफिसर थी, माने मैं एक लॉजिस्टिक्स ऑफिसर थी, राइट? फौज में लॉजिस्टिक्स ऑफिसर है जैसे ASC, दैट इज आर्मी सर्विस कोर, एक है ऑर्डिनेंस, दैट इज आर्मी ऑर्डिनेंस कोर। आर्मी सर्विस कोर का काम होता है हर तरीके का राशन, लुब्रिकेंट्स, एनिमल ट्रांसपोर्ट। एनिमल ट्रांसपोर्ट माने म्यूल्स, पहाड़ियों के ऊपर जब गाड़ियां नहीं चढ़ पाती तो म्यूल्स आते हैं, ठीक है? तो ये सब चीजें फौज को प्रोवाइड करना ASC का काम है। एक बड़े फेमस चाइनीज वॉर स्ट्रेटेजिस्ट थे सुनजू। सुनजू ने कहा था कि आर्मी मार्चेस ऑन इट्स स्टमक, मतलब एक फौज के अंदर से उसका रसद पानी का कंपोनेंट अगर आप निकाल दें तो वो फौज हार जाएगी। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए एवरी आर्मी मस्ट हैव 3 थिंग्स। फर्स्ट इज द sheer नंबर ऑफ द आर्मी। कितनी बड़ी फौज है ना? बहुत बड़ी फौज होगी तो उसके पास इतने इतने सैनिक हैं कि वो जीत जाएगी। दूसरी चीज, द इक्विपमेंट एट द डिस्पोजल ऑफ दैट आर्मी, कि उसके पास कितने नए तरीके के इक्विपमेंट है ना? तो अगर आपके पास बहुत नया अग्नि 5 है और आपके पास पृथ्वी मिसाइल है और आपके पास हाइपरसोनिक्स हैं और आपके पास सही सैटेलाइट्स हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं, एंड यू हैव गॉट द राफेल्स, सो यू गेट कॉन्फिडेंस इन योर आर्मी। सो फर्स्ट थिंग इज volume of army, second is equipment of the army. But Bonaparte said a very interesting thing. He said the third factor overrides the first two. ये थर्ड फैक्टर है मोरल ऑफ द आर्मी। तो अगर वो आर्मी छोटी है, उसके पास इक्विपमेंट भी बहुत बड़े नहीं है, लेकिन उसका मोरल बहुत हाई है, तो वो फौज किसी भी बड़ी से बड़ी फौज और मॉडर्न से मॉडर्न इक्विपमेंट के सामने जीत जाएगी। और फौज के मोरल को हाई रखने में लॉजिस्टिक्स का बहुत बड़ा हाथ। आप सोचिए, एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में लड़ रहे हैं ऑपरेशन विजय के टाइम हमारे जवान, और मैं उनको गर्म कपड़ा ही ना दे पाऊं, मैं उनको बुलेट प्रूफ ना दे पाऊं एज लॉजिस्टिक्स ऑफिसर। जिन गाड़ियों ने उन्हें लड़ाई के मैदान पे पहुंचाना है, रेजिमेंट्स अपॉन रेजिमेंट्स वर कमिंग ऑन द एयरपोर्ट, और वहां से ये गाड़ियां उनको ले जा रही थी इन फॉरवर्ड लोकेशंस। अगर मैं उन गाड़ियों को सही टायर नहीं दे सकती, अगर मैं उनकी बैटरीज नहीं दे सकती उन गाड़ियों, अगर मैं उस सोल्जर के बंदूक में गोली नहीं दे सकती, बोफोर्स की गन तो खड़ी है लेकिन मैं उसका गोला नहीं दे सकती, तो क्या उस फौज का कोई मोरल है लड़ने का? नहीं होगा। वो बोलेंगे हमारे पास सामान ही नहीं है, हम क्या लड़े? हम खाली ये राइफल को एक डंडे की तरह थोड़ी यूज कर सकते हैं। सो मोरल विल फॉल डाउन इफ द आर्मी इज नॉट वेल इक्विप्ड। और ये काम एक लॉजिस्टिक्स करती है। अभी इसमें एक आम एक रूटीन दिन क्या है, तो चाहे ऑर्डिनेंस है, चाहे ASC है, चाहे इंजीनियर्स हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे सिग्नल्स हैं, फौजियों की जिंदगी एक बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से चलती है। सुबह आपकी शुरुआत होती है अर्ली मॉर्निंग PT के साथ। ये आदत आपको लग जाती है एकेडमी से, ठीक है? सुबह PT ग्राउंड पे फॉल इन होता है। एक तो सबसे पहले चीज, फौज में कोई चीज आपकी चॉइस से नहीं है। एवरीथिंग इज अ परेड, सो इट इज अ PT परेड। वहां जाना जरूरी है। यू डू नॉट हैव द ऑप्शन टू से मुझे आज देर तक सोना है, मैं नहीं चाहता था। नो, आपके ऊपर इंक्वायरी हो जाएगी अगर आप नहीं गए। तो अच्छा, PT पे गए तो उस वहां पे पहनने का एक ड्रेस डिसाइडेड है। इट हैज टू, अपनी मर्जी से आप कुछ नहीं पहन के जा सकते। यू हैव टू वेयर योर व्हाइट T-शर्ट एंड व्हाइट शॉर्ट्स और व्हाइट ट्राउजर्स, व्हाइट सॉक्स, व्हाइट शूज। ये पहनकर आप PT ग्राउंड में पहुंचते हैं। जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर होता है उसको रिपोर्ट दी जाती है, कितने लोग PT में हैं, कितने JCOs हैं, कितने ORs हैं। PT आप करते हैं। उसके बाद
there is a break, you come back, you have your breakfast, you get ready, and again you go back to your office. अब ordinance में there is an depots में there is an 8 hours working. Okay. So depots come under Factory Act क्योंकि हमारे पास civilian laborers होते हैं. Hmm. So it is 8 hours working. डिपो में जब आप काम करते हैं तो you must be very alert because you are equipping the fighting forces with everything that they need. Hmm. तो चाहे वो जवान के पहनने का जूता हो, चाहे उसकी वर्दी हो, चाहे उसका ICK हो, हेलमेट्स हो, चाहे उनके लंगर में खाना बनाने के लिए पतीला हो, या उनके धोबी के लिए वर्दी को प्रेस करने के लिए आयरन हो, चाहे हेलीकॉप्टर में लगने वाला स्पेयर हो, या एमटी में गाड़ियों को कसने वाला स्पैनर हो. Right from the aircraft spare till the needle is provided by ordnance. Got it. तो ordnance का काम है फौज को वेल ऑयल रखना. कैसे हर चीज जो चाहिए, फौजी को रहने के लिए टेंट चाहिए तो टेंट, उसमें लगने के लिए बैम्बू है तो बैम्बू, एवरीथिंग, छोटी से छोटी चीज भी आप सोचें तो वो ऑर्डिनेंस देती है. Got it. राइट? अब आपने सियाचिन में देखा कई तरीके के इक्विपमेंट्स होते हैं, कई स्पेशल क्लोथिंग होती है, और राजस्थान में अलग तरीके की आपके ड्रेस है. जो आपके एम्फीबियस ऑपरेशंस हो रहे हैं उसमें लगने का गियर अलग है. आपके रेडियो सेट्स हैं, आपके मिसाइल्स हैं. राइट? सो एवरीथिंग, मतलब मैं आपको रेंज बता रही हूं, धोबी की प्रेस से लेकर अग्नि 5 मिसाइल, ये सब ऑर्डिनेंस प्रोवाइड करती है टू द फाइटिंग फोर्सेस. और जब एक आप ऑफिस में अपना जब काम कर रहे हैं, एवरी स्मॉल लिटिल थिंग इज इंपॉर्टेंट. क्योंकि अगर आपने कुछ ओवरलुक कर दिया, अब मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देती हूँ. जब मैं लेह में पोस्टेड थी इन माय यूनिट, वी यूज्ड टू डू विंटर स्टॉकिंग. 6 महीने सड़क खुलती है वहां, 6 महीने सड़क बंद होती है. तो जब सड़क खुलती है उस समय ही सारा सामान नीचे प्लेन एरिया से बाय रोड ऊपर आता है. तो विंटर्स के टाइम पर हमारे पास ऑलरेडी सामान होता है और हम अगले साल की स्टॉकिंग की तैयारियां कर रहे होते हैं. विंटर्स में हम अपनी डिमांड्स बना रहे होते हैं कि हमें क्या सामान चाहिए, और हम अपने डिपोज में और फैक्ट्रीज में भेजते हैं वो डिमांड. और जैसे ही सड़क खुलती है, जो हमने डिमांड करी है वो सामान डिपोज से ट्रक्स में भरकर रोड के जरिए ऊपर पहुंचता है. तो आप ये सोचो कि मानो नया इक्विपमेंट कोई आ रहा है और मैंने उसके स्पेयर अगर डिमांड नहीं किए और सड़क बंद हो गई, तो एवरीथिंग विल हैव टू बी एयरलिफ्टेड, क्योंकि आगे तक की पूरी फौज कितनी डिपेंडेंसी है, बहुत ज्यादा. तो उस वॉल्यूम के सामान को जब एयरलिफ्ट किया जाएगा तो एक छोटी सी कील भी लाखों की तब्दील हो जाएगी. क्योंकि आप उसका एस्केलेशन देखिए प्राइस में कितना होगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेरी अलर्ट. और फिर शाम को गेम्स होते हैं, और अगर ऑफिसर्स मेस में पार्टी है तो देन यू आर देयर इन योर सेरेमोनियल बेस्ट. और आपको अकेडमी में एकदम जिस तरीके की ट्रेनिंग कराई जाती है कि हाउ टू हैव योर डाइनिंग एटिकेट्स एंड हाउ टू हैव योर डिनर नाइट्स. और अगर कोई बड़ा खाना है तो आप जवानों के साथ लंगर में जाते हैं and you have the बड़ा खाना there, you interact with your troops. लेकिन आप सुबह से लेकर शाम तक की आप एक्टिविटी देखें, all your waking hours you are dealing with your men. You are having a team spirit, you are making a bond with your team. यही तो OLQ है जो SSB में चेक कर रहे हैं. So जो वहां से शुरू होता है वो हर चीज का मायने है. आपके इनिशिएटिव का मायने है, आपके डिसिप्लिन का मायने है, आपके बोलने का मायने है. तो एक ऑफिसर की जिंदगी सुबह से लेके शाम तक बिजी होती है, ऑक्यूपाइड होती है, और मेस की पार्टी भी ऑप्शनल नहीं है, वो भी परेड होती है. तो हर चीज को परेड का नाम दिया जाता है, एंड यू कैन नॉट मिस एनीथिंग. दैट इज द डिसिप्लिन. Nice one.
Ma'am, if you could also tell us, you have operated in both Northeast and even on the, Leh. So how was your experience back then in the high altitude and Northeast? And you opted to be there in that region. I opted to be in both these places. Hmm. You see, Akash, when I joined army, it was very initial days of girls coming into army. So everything was on an experiment basis. When I completed my young officers course, जिसको basic ordnance management course कहते हैं, जिसके बाद जो पैरेलल डिग्री मिलती है वो है इट्स अ ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मटेरियल्स मैनेजमेंट. तो जब मेरा वो लॉन्ग कोर्स खत्म हुआ, so I was due for a fresh posting. I volunteered to be posted to Northeast under OPRINO. अच्छा, okay. OPRINO is a basic umbrella operation जिसके अंदर फौज बहुत सारे ऑपरेशंस करती है पूरे नॉर्थ ईस्ट में. And I was posted at a base depot which was catering to entire Northeast. और नॉर्थ ईस्ट की जो 7 स्टेट्स हैं वो बहुत फार फ्लंग एरियाज हैं और बहुत बड़े एरिया में ये फौज डिप्लॉयड है, जहां पर आप देखेंगे तो अरुणाचल में सब जीरो टेम्परेचर्स भी जाते हैं, बहुत ठंड पड़ती है. और आप देखेंगे कि मेघालय के रेन फॉरेस्ट भी है, राइट. तो हर तरीके का क्लाइमेट वहां पर आपको मिलेगा. लेकिन फौज इतनी ऑपरेशनली ऑक्यूपाइड है और इतना डिपेंडेंसी है थी उस हमारे डिपो के ऊपर, वो मेरी जिंदगी का आई थिंक इट टोटली मेड मी द लॉजिस्टिक्स ऑफिसर. बिल्कुल जिसको लॉजिस्टिक्स ऑफिसर कहते हैं, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपके काम की इंपॉर्टेंस क्या है. आप किसी को भी एक जोड़ी सॉक्स भी कम नहीं दे सकते, इतनी इंपॉर्टेंस है उस काम की. एंड योर मिस्टेक्स विल कम बैक होम इन बॉडी बैग्स. दिस इज व्हाट वाज टॉट टू मी, कि आपने अपना काम लाइटली ले लिया और टाइम पर नहीं किया, या आप अपनी टीम को लीड नहीं कर पाई और आपके नीचे काम करने वाले लोगों ने टाइमली परफॉर्मेंस नहीं दिया. सो probably some infantryman is going to have a life-threatening situation. तो ये बिल्कुल एक सिखलाई वहां जो मिली. और फिर जब मेरे 2 साल का टेन्योर खत्म हुआ, वो 2 साल के टेन्योर के बाद अब नई पोस्टिंग थी. आई अगेन वॉलंटियर्ड. शायद फौज को भी लग रहा होगा कि ये एक गिनी पिग टाइप है, ये एक वॉलंटियर है, शी इज वॉलंटियरिंग. एंड not me, I think in many places women must be volunteering. Since आप मेरे से बात कर रहे हैं तो I'm talking about me only. I volunteered to be posted to extreme cold climate and high altitude area. And I became the first logistics officer, lady officer, to be posted there. So again, Leh में posting थी, and we were looking at the entire area, Leh, Siachen, Kargil, Dras, ये जो पूरा आप कारगिल की लड़ाई का जो देखते हैं, and areas beyond. बहुत एरियाज तो उसमें लिखे भी नहीं हैं, मतलब जहां से आपका मनाली रूट शुरू होता है. दिस होल बिग अम्ब्रेला कम्स अंडर दैट. वो जैसे मैंने बताया, एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट है, विंटर स्टॉकिंग है. ये फौज में सिर्फ वही होता है. जो विंटर स्टॉकिंग है वो सिर्फ लेह में की जाती है, क्योंकि 6 महीने सड़क बंद वही होती है. ये एक नई चीज सीखने को मिली, एकदम नया, कि फौज को कितना रिजर्व रखना चाहिए, फौज को कितना सामान स्टॉक करना चाहिए. एंड इफ आई कैन जस्ट गिव यू अ वेरी इंटरेस्टिंग कोरोलरी हियर, कि लेह में जब हम थे तो हम एक डिव लेवल की ट्रुप्स को केटर कर रहे थे. हाँ, एक डिवीजन लेवल को हम वहां पर केटर कर रहे थे. लेकिन रातों रात जब कारगिल की लड़ाई वहां लगी, तो वहां लाखों की संख्या में सोल्जर्स आए. सोल्जर्स तो आ गए, कोई जैसलमेर से आ रहे हैं, कोई तमिलनाडु से लिफ्ट किए जा रहे हैं, कोई नॉर्थ ईस्ट से लिफ्ट किए जा रहे हैं, कोई सेंट्रल इंडिया से लिफ्ट हो रहे हैं. इमेजिन एवरीवन रीचिंग देयर.
एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट एरिया, हाई एल्टीट्यूड एरिया, हर एक को उस मौसम के लिए इक्विप करना है। कितना बड़ा चैलेंज था। ऐसा नहीं है कि बाजार में गए और सामान ले आए। मैंने आपने खाना बनाया है 10 लोगों के लिए और आपके घर में 1000 लोग आ गए, तो आप कैसे, और सब खाने के टाइम पर आए हैं, सबको उसी समय खाना चाहिए। हाउ विल यू डू इट? दैट इज व्हाट लॉजिस्टिक्स डिड इन ऑपरेशन विजय, एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी saying this, that logistics performed true to the spirit of the organization and the kind of respect that we got after that. हालांकि सहरा इन्फेंट्री ऑफिसर के सिर बनता है, इन्फेंट्री के जवान के सिर बनता है जब लड़ाई जीती जाती है, लेकिन उस लड़ाई को पॉसिबल कौन करता है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि फौज में बहुत डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत कोर्स हैं, बहुत सर्विसेज हैं, और हर एक का एक रोल है, और हर एक की एक इंपॉर्टेंस है, और हर एक कोर को उसका काम करने दिया जाता है। एंड वी वर्क इन अ टोटल कोहेशन, टीम वर्क। याद है OLQ SSB में चेक की जाती है। मानिए कि अगर वो कारगिल की लड़ाई के टाइम पर मैंने नीचे से अपने बेस डिपोज के साथ में तालमेल बनाकर सही समय पर वो बोफोर्स के गोले, सही समय पर वो स्पेशल क्लोथिंग्स हमारी टीम ने इकट्ठा करके ऊपर नहीं लाई होती, तो क्या हमारे इन्फेंट्री के जवान अपना मोराल इतना हाई रख सकते थे? तो ये सोचने की चीजें हैं। तो इन्फेंट्री, यस, एवरीवन गोज फॉर इन्फेंट्री, लेकिन यू मस्ट ऑल्सो ऑलवेज थिंक कि उनके पीछे जो सपोर्ट है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सामने वाला। Ma'am, you have seen Kargil very closely. If you can, picture it for us, how was the situation back then, and if you can narrate any story which is very close to your heart about the Kargil which you just witnessed. कारगिल की लड़ाई जब चली आकाश, मेरा 2 साल का टेन्योर उस समय लेह में कंप्लीट हो रहा था। Right? I got posted there in 1997, okay. And in 1999 we had Kargil. Since I was the first lady officer there, तो शुरू के दिनों में it was very challenging. Not for me, for everyone around me, because I was very clear. मुझे पता था कि मुझे क्या करना है, मुझे अपने ऊपर विश्वास था। I was willing and more than ready to perform under any pressure, क्योंकि मैं तो वॉलंटियर करके गई थी, है ना, किसी ने मेरे सिर पे थोपा नहीं था। I knew it is not easy. I knew कि काम तो जो भी होगा, सबसे पहले तो आपकी बॉडी को उसके लिए रेडी होना है। रेरिफाइड एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन है ही नहीं, मतलब ऑक्सीजन इज ऑलमोस्ट 50% लेस देन व्हाट इट इज देयर इन प्लेन्स। तो आपको सांस ही नहीं आता है शुरू। फॉर अबाउट whenever you go from plains areas for 6 odd days, you are made to rest, acclimatize. Your body has to get used to. उस दौरान आपने दौड़ना नहीं है, उस दौरान आपने स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस नहीं करनी, हल्का खाना खाना है। इस तरीके से आपकी बॉडी को उसके यूज टू किया जाता है। सब जीरो टेम्परेचर डिपिंग डाउन टू -10, इतना जिंदगी में नहीं कभी देखा। एंड यू आर देयर। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जहां तक नजर जा रही है, जितनी रेजिमेंट्स हैं, जितनी जगह बात हो रही है, किसी के पास कोई लेडी ऑफिसर नहीं। Okay. They did not know how it is to have a lady officer, but lady officer knew that she is an officer. She is not a lady officer. She is just an officer of Indian Army. And जब तक कारगिल की लड़ाई छिड़ी, I think I must have done something right. That Indian Army had started posting more lady officers, and this was a very big boost to my confidence. So 1999 में जब कारगिल की लड़ाई शुरू हुई, उस समय तो हमें पता भी नहीं था कि लड़ाई शुरू, you know, we thought that it is an operation and we are,
it's going to be a short time thing or a small operation. लेकिन जैसे से दिन निकलते गए, we understood the range and the scope of it. And then we came to know that not one or two, but hundreds of posts have been occupied by Pakistanis. And there is a large area. हम कारगिल हाइट्स इसलिए बोलते हैं कि कारगिल और उसके आसपास के जितने एरियाज हैं, से द्रास, मशको, तुर्तुक, बटालिक, कारगिल, ये एरियाज पाकिस्तानियों ने इनकी हाइट्स को ऑक्यूपाई कर लिया था. They were not allowing Indian Army to have a free use of our national highway. तो हाइट्स उन्होंने ऑक्यूपाई की थी बड़ी स्ट्रेटेजिकली और बड़ी प्लानिंग से ऑक्यूपाई करी थी, जहां से वो हमारे नेशनल हाईवे को देख सकते थे. एंड व्हेनेवर वी वुड हैव द कॉन्वॉयज मूविंग इन, रिमेंबर मार्च का महीना हमारी एनुअल विंटर स्टॉकिंग शुरू हो रही थी, सर्दियां खत्म हुई थी, एंड ट्रक्स वर ब्रिंगिंग द स्टोर्स. पाकिस्तानियों ने वही हमारा नेशनल हाईवे रोक दिया. They did not want winter stocking to happen. They wanted Indian Army to be caught high and dry. And they wanted to control the National Highway 1 Alpha, जिससे कि वो लेह को कश्मीर से अलग कर सके. So that this area is forever cut off from Indian mainland. बहुत बड़ा चैलेंज था. We were caught by surprise. लेकिन जैसे मैंने आपको एक शुरू के आंसर में बोला था कि फौज क्या करती है अपने पीस टाइम में, ट्रेनिंग, रीट्रेनिंग, रीट्रेनिंग. तो जितना हमको सरप्राइज मिला, हमने उतने मजबूती से अपने रिस्पॉन्स को अंजाम दिया. Yes, we were caught by surprise, but our response was in record time. कारगिल में सबसे बड़ा चैलेंज था टू रीऑक्यूपाई दोज हाइट्स, बिकॉज कारगिल की अगर आपने चोटियां देखी हैं तो दे आर लाइक दिस, ओके, डीप, और उसके ऊपर कोई कवर नहीं है, मतलब झाड़ियां नहीं है, पेड़ नहीं है, दे आर ड्राई बैरन लैंड्स. और जब हमारे इन्फेंट्री के जवान ऊपर चढ़ रहे थे तो ऊपर बैठा हुआ जो पाकिस्तानी है वो आराम से इनको देख सकता था, क्योंकि कोई कवर नहीं, कोई बड़ी बड़ी चट्टानें नहीं थी, कोई छुपने की जगह नहीं थी. सो शुरुआत में हमारे कैजुअलिटीज हुए. आप ये देखिए, वी हैड एन एम्यूनिशन डंप जिसमें कभी नहीं सोचा था, वो इतना सेफ सिक्योर एरिया में हमने सोच के रखा था कि यहाँ कभी दुश्मन नुकसान नहीं पहुंचा सकता है. लेकिन कारगिल का वो एम्यूनिशन डंप, लड़ाई की शुरुआत ही वहीं से हुई. When Pakistanis did the shelling and the first few shells dropped on that ammunition dump. Okay. हमारा करोड़ों का एम्यूनिशन स्वाहा हो गया. Again, it comes practice, practice and practice. और हमने कितनी जगह वहां से एम्यूनिशन अलग अलग जगह साइटिंग करके रखा था कि जब एकदम से हमारे पास इतनी सारी फौज आई तो we did not fall short of ammunition at that time. We had enough to issue them. And क्योंकि जवान आ रहा है अपना हथियार लेकर, लेकिन अगर वो हथियार रुकता है तो उसके लिए रिपेयर चाहिए, उसके लिए स्पेयर्स चाहिए, उसके लिए गोली बारूद चाहिए. बोफोर्स की गन्स तो नीचे से आ रही थी बाय रोड, लेकिन इसका जो गोला बारूद था वो पूरे देश में हमारे अलग अलग एम्यूनिशन डिपोज में वहां से लेकर आना था. Now this was also the time when India was facing sanctions. Okay. कौन से sanctions? हमने न्यूक्लियर अपना ब्लास्ट किया था, हमने उसको टेस्ट किया था, न्यूक्लियर टेस्ट किया था, और उसकी वजह से लॉट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज हैड पुट सैंक्शंस ऑन अस. तो हमको
बोफोर्स के गोले, एम्यूनिशन जो दूसरे देशों से खरीदने की जरूरत पड़ रही थी, हम उसे नहीं खरीद पा रहे थे क्योंकि हमारे ऊपर सैंक्शंस लगे थे. वी कुड नॉट बाय दैट. सो नाउ इट वाज अ टेस्ट, इट वाज चैलेंज. लेकिन फौज में हमको क्या सिखाते हैं कि चैलेंज आएगा, इट इज ओनली अ मैटर ऑफ प्रिपेयर्डनेस. You cannot say it cannot happen. You cannot say I cannot do it. You will have to make it happen. And in record time, ammunition was purchased from South Africa and it was placed in uh, locations where these guns were working. Okay. अब कारगिल की लड़ाई का मैं आपको एक कारगिल के हीरो से इंट्रोड्यूस कराऊं. कारगिल के हीरो थे बोफोर्स. क्यों बोफोर्स? क्योंकि कारगिल की हाइट्स कैसी है? ऐसी. एंड बोफोर्स गन का सबसे बढ़िया फीचर है दैट बाकी आर्टिलरी गन्स जो खाली 1 डिग्री तक वर्क कर सकती थी, उनकी बैरल्स, बोफोर्स गन की बैरल कुड गो अप टू ऑलमोस्ट 70 डिग्री. Okay. एंड सो जो ऊंचाई पर बैठा हुआ पाकिस्तानी है, दे कुड पाउंड डायरेक्टली ऑन द पोस्ट्स. टाइगर हिल की जिस दिन लड़ाई हुई, आकाश, one single day, almost 9,000 shells were fired on that Tiger Hill. We pounded the Tiger Hill. काली पड़ गई थी टाइगर हिल. The artillery worked so wonderfully कि उनका 50 मीटर का दायरा होता है कि हमारी जब इन्फेंट्री 50 मीटर नजदीक पहुंचती है, then by radio the team leader makes a contact with the artillery battery and tells them now stop the fire, and then the infantry marches in for the kill. लेकिन यहां पर आर्टिलरी का फायर इतना प्रेसिशन था that for about just 10 to 15 meters they were firing. Okay. They were allowing our infantry to close in. ऊपर से गोले जा रहे हैं और नीचे से ये इन्फेंट्री के जवान आगे बढ़ते जा रहे हैं. Now again I will bring in the support services here. मैंने आपको बताया ऊपर से जो टीम लीडर है वो नीचे आर्टिलरी वालों के साथ तालमेल कर रहा है. और सबसे सिक्योर्ड हम कम्युनिकेशन मानते हैं आज की तारीख में भी, नॉट सैटेलाइट कम्युनिकेशन, नॉट मोबाइल कम्युनिकेशन, इट इज ओनली लाइन कम्युनिकेशन. दुश्मन उसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकता. तो उतने गोले बारूद के बीच में भी सीओ के पीछे या ग्रुप लीडर के पीछे रेडियो ऑपरेटर चल रहा है, रेडियो लगा के, एंड स्पीकिंग एंड टेलिंग देम कि नाउ फायर, नाउ स्टॉप फायर. और जो ये गोले आ रहे हैं, इसकी वजह से वो जो सिग्नल के तारों की लाइन है उसके ऊपर डैमेज हो रहा है. लेकिन सिग्नल के जवान और सिग्नल के ऑफिसर्स ने कम्युनिकेशन को हमेशा ऑन रखा. These jawans would be carrying those rolls of wire on their shoulders and running under those golabari and repairing those lines. Rarefied atmosphere, oxygen नहीं है, ठंड इतनी है कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं. They were doing it day in and day out. Nice. And victory was sweet. So कारगिल की लड़ाई तो मेरे लिए एक पर्सनालिटी शेपर थी. You grow in your mind, you grow in your conviction. और उस दिन आपको समझ में आता है कि it is not over till the time you say it's over. And Akash, during the Kargil war, I was pregnant. Okay. I was 5 months pregnant. I was there. I always maintain that it's the power of mindset. अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं, तो against all odds आप करेंगे, and you will perform, and world will see. True. So there are many stories of Kargil. Ma'am, you have seen so many operations
across the country where you have been posted. If I can ask, any 3 life lessons that you have learned, which you still cherish, any 3 from the armed forces. Life lessons, life in army itself is a huge learning experience. Huge. वो आपके इतने lessons देते हैं, इतने lessons देती है फौज आपको कि आपकी हर दिन एक सीख है, क्योंकि no 2 days in your army service are alike. Okay. हर दिन एक नया चैलेंज, हर दिन एक नई सिचुएशन, हर दिन एक नई सीख, राइट? क्योंकि आप अकेले नहीं हैं. You are not an island. You are not sitting in a cubicle with your desktop and your own lunch there and your own car. आप आए, आपने बंद किया, आप अपने cubicle में बैठे. नहीं. You are not an island in army. You are there with your team. So either you are there working with your team, hands-on, or you are working for the team. You are working in broader perspective, क्योंकि अकेला तो कुछ है ही नहीं ना फौज में. So the पहला lesson है फौज में टीम वर्क. और ये lesson आपको फौज में पहले दिन से सिखाते हैं जब आप अकेडमी में जाते हैं, और इसकी सिखलाई शुरू होती है जब आपको रगड़ा मिलता है, राइट? पनिशमेंट्स आपको सिखाती हैं कि आप अकेले हैं और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो भी आप पनिशमेंट के भागी हैं क्योंकि आप अकेले काम कर रहे हैं. Okay. There is no individual identity or individual gladiator here. You are here as a team. आप अकेले अकेडमी में कहीं चल नहीं सकते हैं. Do you know? You have to walk in a squad. You have to be in a squad. Squad क्या होता है? 4 लोगों का ग्रुप. और 4 ऐसे नहीं है कि आराम से ग्रुप में चल रहे हैं. 2 आगे 2 पीछे, एक के पीछे एक बराबर, एक कदम से चलेंगे. और चलेंगे नहीं. You cannot walk in academy. You are running. You are jogging in academy. So from day one you are taught कि आप अकेले कुछ भी नहीं है, आप टीम के साथ हैं. आपके टीम में किसी ने भी गलती करी, पनिशमेंट सबको मिलेगा. So then आप अकेले टाइम पर पहुंच गए, उससे मतलब नहीं है. You are as good as the last person who is coming. So you are not worried then of your own performance. You are worried about that last person. Correct. You are worried कि अरे यार कोई और डिसिप्लिन मत ब्रेक कर देना, नहीं तो फिर सबको रगड़ा लगेगा. So that sense of responsibility comes. You feel you are responsible for everyone. वो Three Musketeers novel का एक सेंटेंस है ना, all for one and one for all. So that is exactly true. और वो आपके दिमाग में इतना ड्रिल कर देते हैं कि आप अकेले खुद को पिक्चर ही नहीं कर सकते. आप कभी किसी फौजी को अकेले में, आप उसका दिमाग अगर स्कैन करके देख सकें, तो आप कभी किसी फौजी को एक अकेले अपने आप को फौजी कभी पिक्चर नहीं कर सकता. वो हमेशा अपनी either a फौजी is with his troops, men, course mates, he's always with the people who are very close to him. Second चीज मैंने फौज से सीखी, that with confidence you can overcome so many problems. आपको कोई चीज का जवाब नहीं भी आता ना, लेकिन आप कॉन्फिडेंस से जवाब दीजिए. Because it is the confidence that is going to give the feeling to the person who is looking at you कि अगर इसको नहीं भी आता है ना, तो भी ये मैनेज कर ले. And that is OLQ, initiative. I told you, right? Initiative लेने की पावर होनी चाहिए. आप कहीं फंस गए तो आपको उससे निकलने का सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए. करना आता है कि नहीं वो बाद की बात है, लेकिन मन के हारे हार है, मन के जीते जीत. So that confidence is extremely important. वो एक कहते हैं ना कि एक ही चीज काम कर सकती है, या तो आपका दिमाग काम कर सकता है या आपका एड्रेनलिन काम कर सकता है. तो अगर आप पैनिक में आ जाओगे तो आपका एड्रेनलिन वर्क करने लगेगा. So think calmly, be confident. These are my lessons from army. And one thing that I want everyone to have a takeaway from this talk that we are having, that in army, resilience is rated higher than excellence. Okay.
आप हारते जा रहे हैं, आप गिरते जा रहे हैं, आपसे बेंच स्ट्रेच नहीं हो रहा, शुरू के दिनों में आपसे हथियार कॉक नहीं हो रहा, आपसे रस्सा नहीं चढ़ा जा रहा, आपसे सही तरीके से हॉन्चिंग नहीं हो रही, आपको स्विमिंग करना नहीं आ रहा, आपको हिम्मत नहीं हारनी, बिकॉज यू विल बी ट्रेन्ड। लोग हैं आपको सिखाने के लिए, और फौज में ही नहीं, हर जगह सीखने के रास्ते तभी तक खुलते हैं जब तक आपके अंदर सीखने की इच्छा। माइंडसेट है। इफ यू हैव द रेजिलियंस, राइट, तो आप फर्स्ट आ रहे हैं हमेशा उससे मैटर नहीं करता। आप 40 किलोमीटर की वो मैराथन गिरते पड़ते भी कंप्लीट करते हैं, बीच में नहीं छोड़ते हैं। यू विल बी जज्ड ऑन दैट, एंड देन इट बिकम्स योर सेकंड नेचर। वो एक हिट मी टॉय होता है ना, उसको यू हिट करो वैसे पीछे गिरता है, लेकिन फिर खड़ा होता है, फिर मारो वो फिर नीचे जाता है। सो दिस इज व्हाट इज लाइफ इन आर्मी। आपको कितने भी बार गिराएंगे, आपको कितने भी बार थपेड़े पड़ेंगे, आपको कितनी भी बार परेशानी आएगी, बट यू हैव टू बाउंस बैक, टू बाउंस बैक, यू हैव टू बाउंस बैक। और ये फौज में है चाहे फौज के बाहर है, you will always come out as a survivor if you do not give up. So these are my life lessons from army. Ma'am, before I move to my last question, if you could speak about, your initiative on YouTube about the Shorty Tales, what is it about? And, what videos do you make there, which people can watch? Yeah, Akash, I always felt that army does not, brag about itself. Army is always not seen, not heard. आएंगे, काम करेंगे, जाएंगे। अपने बारे में कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलेंगे, कोई होर्डिंग्स नहीं लगाएंगे, कोई स्कीम्स चालू नहीं करेंगे, भाषणबाजी नहीं करेंगे। दे आर साइलेंट ऑपरेटर्स। आपने ताज का ऑपरेशन अगर आपको याद हो कि जब वहां आतंकवादी घुस गए, एंड देन यू हैड दीज एनएसजी कमांडोज कमिंग इन, आपको उनमें से एक का भी नाम पता है? आपको उनमें से एक का भी चेहरा पता है? आपको पता है who was leading them? No one speaks of glory in army. We are here to perform. We come, we perform, and we go back. And I always felt that इतनी stories हैं, इतने brave hearts की कहानियां हैं, इतने हैरत अंगेज military operations हैं जो public domain में हैं, जिनकी इंफॉर्मेशन अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिलेगी। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ एनी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, लेकिन लोग उनके बारे में पढ़ते नहीं, लोगों को पता ही नहीं है कि फौज क्या क्या कर गुजरती है, एंड दिस इज अ ह्यूज मोटिवेशनल फैक्टर फॉर स्पेशली यूथ. सो ड्यूरिंग लॉकडाउन आई डिसाइडेड टू स्टार्ट this channel called Shaurya Tales, wherein I tell the stories of brave hearts. I tell the stories of hair-raising military operations. I tell you the stories of academy days. I tell you the stories of 1971 war, जो Gold Series मैंने शुरू किया है. I tell you the stories of the people, the operations that will make you sit up. कि क्या ऐसे भी लोग काम करके गए हैं? And then they just give you one thought in your head that this is victory of spirit. This is what Shorty Tales is all about. Today only I have uploaded the 45th episode. Okay. And I am very, very glad to say that till date, Akash, not even a single person has criticized. There is not even a single, unlike. Okay. That is what I have gotten from this channel, and people, I think this is what I could do in my limited contribution towards Army, Navy, Air Force. और ये मैं कंटिन्यू करती रहूंगी क्योंकि कहानियां तो असंख्य हैं, और जब तक हम अपने बच्चों को ये कहानियां बताएंगे नहीं, उन्हें पता नहीं चलेगी. So this is a medium of bringing
armed forces to the doorstep, to your mobile, to your laptops. So do visit the channel. And another thing which I always say is, I will always ask you to share. आप सब्सक्राइब करें ना करें, ये आपकी मर्जी है. वो एक फौजी होने के नाते मैं कभी भी नहीं बोलूंगी कि आपके अंदर अगर अपने देश से प्रेम है, फौजियों के लिए इज्जत है, और ये कहानियां आप आगे बताना चाहते हैं, प्लीज शेयर them, because more and more people must listen to them. We owe it to our men in uniform and women in uniform. Got it. My final question to you would be, a lot of aspirants will be watching us. What will be your message to all those, who want to join the forces? I will always tell you that there can be no better career than joining armed forces. This is a very dignified career. आप किसी ऑडिटोरियम में बैठे होंगे, कोई बहुत बड़ा सम्मेलन चल रहा होगा, 4 IAS ऑफिसर्स भी अंदर आएंगे, 6 नेता भी आएंगे, लेकिन एक वर्दी वाला बंदा अंदर आएगा ना, सबकी नजरें उसके पास जाएंगी. That is what is uniform. It makes you stand apart. जब आप वर्दी पहनते हैं ना, तो आप ऑटोमेटिकली 2 इंच आपकी स्पाइन एक्स्ट्रा ऊंची हो जाती है ना? And this is the only organization which allows you to keep your rank even after you have retired. अगर मैं IPS ऑफिसर बनती, तो मेरे नाम के आगे लिखा जाता भूतपूर्व IPS ऑफिसर, है ना, मिसेस सो एंड सो. लेकिन आज मैं कैप्टन के नाम से जानी जा रही हूँ, जबकि फौज मैंने इतने साल पहले छोड़ दी. लेकिन आज भी मैं उस रैंक के साथ ही जानी जाती हूँ. वो मेरे पर्सनालिटी का हिस्सा है. और एक चीज, अगर आप फौज को कैंटीन के लिए या पर्क्स के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, please don't join. But if you want to join army because you feel that this is the career that is going to make you the person you are, which will bring out that feeling of leadership, confidence, personality, this is the only career which trains you to kill and which prepares you to die. Right? There is no other career where the life is so glorious. Army gives you a lot of opportunities. आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं सब यंग लोगों को एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बोलना चाहूंगी एज माय पार्टिंग सेंटेंस. हमारे देश के पहले एस्ट्रोनॉट थे स्क्वाड लीडर राकेश शर्मा, बराबर? Now India is preparing to send its first crewed mission to space, गगनयान. और गगनयान की ट्रेनिंग के लिए 4 एयरफोर्स pilots are currently, as we speaking, they are undergoing training to be in Gaganyaan. Who knows that one of you will be part of the next crewed mission to space or to moon. And I have a vision that one day a woman pilot also becomes part of this mission. So life is amazing. It will give you opportunities that you cannot even dream of. Mission Olympics. Army prepares the sports person for Olympics. Neeraj Chopra, we all have seen. Major Dhyan Chand, we all know. Ye legends hain. Milkha Singh. These are the people who have all worn uniform. So, आप जो कुछ भी करना चाहते हैं जिंदगी में, सिर्फ अगर उसके अंदर जुनून शामिल है, तो आर्मी इज फ्री. And thanks a lot, Mom. Past 1 hour we have spoken to you, and you have shared all your experiences, learnings with all of us. And I hope a lot of people who will be watching us will gain a lot from whatever you have spoken. So thanks again, Mom, for joining us. And thank you. Jai Hind, Mom. Jai Hind. Jai Hind. It's been wonderful speaking to you, Akash. I really enjoyed answering your soul-searching questions. Thank you. Thank you, Mom. Thank you.